نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی زدنا علما ربی زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی مائک میوٹ کر دیں اپنے. دوسرا پارا آج شروع کرنا ہے. دوسرا پارا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں کہ جب شروع کرنا ہے تو تحویل قبلہ کے لیے ہے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں اس کا حکم دیا تو 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ جو ہے وہ ہوا، اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ انور کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف یا نادان لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے اس قبلہ سے، التی جس پر کانو تھے، علیہا اوپر. کل فرما دیں، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ ہدایت دکھاتا ہے یا راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، لِتَكُونَ شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول، علیکم شہیدا تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، التی کنت علیہا جس پر آپ تھے کہ اللہ مگر لنعلم یعنی جب ہم نے قبلہ تحویل قبلہ کا حکم دیا تو کیوں کیا، اللہ مگر یہ کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے عاقب جو کہ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اور اگرچہ یہ گھراں ہے یعنی مشکل ہے، اللہ مگر ان پر نہیں، الذین ہدی اللہ جن کو اللہ ہدایت دے، یہ گراں ہے لیکن ان پر نہیں جن کو اللہ ہدایت دے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کے لیے یضیع کہ وہ ضائع کرتے ایمانکم تمہاری ایمان کو، ان اللہ بالناس اللہ رؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا چہرے کو پھیرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا یا پھیرنا اپنا آپ کے چہرے کا، فی السماء یا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پسند قریب بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فولی بس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ تو اسی کی طرف اپنے منہوں کو چہروں کو پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَاتٍ اور اگرچہ ہم دے دیں جن کو کتاب دی گئی ہے ہر نشانی، ما تابعوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک کا آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ تم میں سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. ولا ان اتبعت اهواءهم اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین بے شک تب آپ ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. الذین آتیناہم الکتاب بے شک
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما یعرفون ابناہم جیسے کہ وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک کا حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر امت کے لیے ایک جو ہے وہ قبلہ ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک ایک سمت مقرر ہے۔ فاستبقوا الخیرات پس نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اینما تکونوا جہاں بھی تم ہو، یا اتی بکم اللہ جمیعا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے، فولی پس موڑ لیں وجہ کا شطر مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ من حیث خرجتا اور جہاں سے بھی آپ نکلے، فولی وجہ کا تو آپ پھیر لے اپنا شطر مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ اور تم اسی کی طرف اپنا منہ کر لو، اللہ یکون للناس علیکم حجۃ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تمہارے پر کوئی حجت، الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فلا تخشوہم بس مت ان سے ڈرو، واخشونی اور صرف مجھ سے بھی ڈرو، وَلِأُتِمَّ نعمتی تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو علیکم اوپر تمہارے، وَلَعَلَّکُمْ تہتدون اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسول جس طرح کہ ہم نے بھیجا تمہیں رسول منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیتوں کو، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب کی حکمت اور کتاب کا علم، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں جو تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا انکار نہ کرو۔ یہاں کفر زیادہ کفر مسلسل کفر مسلسل ناشکری کفر پر لے جاتی ہے انسان کو، اس لیے یہاں کفر کہا ہے کہ شکر کرو اور انکار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے یا اناج وغیرہ کی، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور ان کا اللہ کا درود اور اس کی رحمتیں ہیں، واولئک هم المهتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت اور جو بھی حج کرے اللہ کے گھر کا، وی تعمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ کوئی حرج نہیں اس پر کہ ان یطوف بہما ان دونوں کا طواف کرے، یہاں طواف کہہ دیا ویسے صحیح ہے اس کا مطلب کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کرے، ومن تطوع خیرا اور جو رغبت کے ساتھ خوشی خوشی بھلائی کرے، فإن اللہ شاکر علیم اللہ بہت ہی قدردان اور علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات جو ہم نے روشن دلیلیں نازل کی، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ جو جس کو ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے فی کتاب میں، اولئک بے شک وہ لوگ اس کے بعد کی ہدایت کھل کر سامنے آ گئی اور اس کو چھپاتے ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ
یہی وہ لوگ ہیں लानत करता है जिन पर अल्लाह वयलअनहुमुल लाइनून और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले अस्तगफुरुल्लाह इल्लल्लज़ीना ताबू लेकिन वो लोग जिन्होंने तौबा की व अस्लहु और इस्लाह कर ली व बय्यनु और उन्होंने यानी कि वो रोशन राह को इख्तियार कर लिया जिन्होंने तौबा की इस्लाह कर ली व बय्यनु और तस्दीक कर दी सारी जो आयतें हैं आयत बैयनात की उलाइका अतूबू इलैहि बस यही वो लोग हैं अतूबू अलैहिम जिन पर फिर आया अल्लाह व अना तव्वाबुर रहीम और बेशक मैं ही तौबा को कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ इन्नल्लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया व मातू और वो मर गए वह हम कुफार और भी इसमें कि वो काफिर थे उलाइका अलैहिम यही वो लोग हैं जिन पर लानतुल्लाह इस्तगफिरुल्लाह लानत है अल्लाह की वल मलाइकाती और फरिश्तों की वन्नासी अजमईन और सब लोगों की खालिदीन फीहा इसमें हमेशा रहेंगे ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब उनसे कमी नहीं की जाएगी अज़ाब वला हुम युनज़रून और ना वो मोहलत दिए जाएंगे व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद और तुम्हारा माबूद माबूद बरहक है एक ही है ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान रहीम उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं रहमान भी है और रहीम भी इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द बेशक पैदाइश आसमान और जमीन के वख्तिलाफिल लैली वन नहार और रात और दिन के आने जाने में वल फुल्की और कश्तियां जो है अल्लाह ती तजरी फिल बहरी जो समंदरों में या दरियाओं में चलती हैं बिमा यनफाउ नासा साथ जो कि नफा देती हैं यानी उन सामानों को लेकर जो नफे वाले हैं इंसानों के लिए वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई और जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से पानी अहिया बिहिल अर्ज़ा बस अल्लाह ने जिंदा किया इसके साथ जमीन को बाद मौतिहा उसकी बंजर होने या मौत के बाद यानी उसके पईमुर्दा होने के बाद वबस्सा और फैलाए फीहा इसमें मिन कुल्li दाब्बातिन हर तरह के चौपाए व तसरीफ रियाही और हवाओं का चलना व सहाबी और बादल वसख्खरी जो कि लटके हुए हैं बैन समा या आसमान के वल अर्द और जमीन के दरमियान लाआयात लिकौमी याकिलून अलबत्ता निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए वमिनन्नासी और लोगों में से मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा जिन्होंने बनाया सिवाय अल्लाह के औरों को शरीक यानी अल्लाह के सिवा किसी औरों को शरीक कर लिया युहिब्बूनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे का हुब्बिल्लाह जैसा कि मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह की इससे हमें पता चला कि हर एक का मर्तबा और मकाम अलहदा है अल्लाह को अल्लाह की हैसियत से पुकारा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उनकी हैसियत नबूवत और रसूलत और आखिरी नबी होने की हैसियत से तो शिरक के लिए किसी को इस सूरत में पुकारा जाए कि इसको नफे नुकसान पर कादिर समझा जाए तो फिर शिरक है और अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत किसी की नहीं होनी चाहिए वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए अशद अशद्दु वो शदीद है हुब्बुल्लिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मोहब्बत में ही है उनकी मोहब्बत में है और इसी तरह सहाबा कराम इसी तरह जितने भी औलिया कामलीन हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ही डूब कर उन्होंने मकाम और मर्तबे पाए हैं अगर हम उनकी मोहब्बतों में पर्सनली डूबेंगे तो शिरक हो जाएगा वला यरल्लज़ीना ज़लमू और अगर तो देखे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया इज़राउन अज़ाब जब वो अज़ाब को देखेंगे अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ ये कि सारी की कुव्वत अल्लाह ही के लिए सारी की सारी कुव्वत अल्लाह ही के लिए वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और ये कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है इस तबर्रा लजीना जब बेजार होंगे वो लोग नत्तुबीउ जिन्होंने पैरवी की मिन लजीन तबाऊ उन लोगों की जिनके पीछे लगकर उन्होंने पैरवी की वराउल अजाब और वो देखेंगे अजाब व तकत्तात बिहिमुल अस्बाब और उनके बाकी असबाब कट जाएंगे वक़ाल लजीन तबाऊ और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की लो अन्ना लना कररतन अगरचे हमारे लिए वापसी होती फा नतबर्रा तो हम बेजारी करते मिनहुम उनसे कमा तबर्राउ जैसे इन्होंने बेजारी की मिन्ना हमसे कज़ालिका इसी तरह युरिहिमुल्लाहु अमालहुम दिखाता है अल्लाह उनको उनके अमाल हसरात हसरत बनाकर अलैहिम ऊपर उनके वमा हम बिखारिजीना मिनन्नार और वह नहीं निकलने वाले आग से या अय्युहन्नासु ए लोगो कुलू खाओ मिम्मा उससे फिल अर्ज़ी जो जमीन में है हलाल तय्यबा हलाल और पाकीज़ा वला तत्तबिऊ और मत पैरवी करो खुतुवाति शैतान शैतान के कदमों की इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है इन्नमा इसके कि नहीं यामुरुकुम वो तुम्हें हुक्म करता है बिस्सुई बुराई का वल फहशाई और बेहियाई का व अन तकूलु अलल्लाहि मा ला तालमून और अल्लाह की बाबत तुम मुंह से वो कहो जो तुम नहीं जानते
फ़ाइज़ा क़ील लहुत्तबिऊ, और जब उन्हें कहा जाता है कि पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, जो नाज़िल किया अल्लाह ने, क़ालू, कहते हैं, बल नत्तबिऊ, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, जिस पर हमने पाया अपने आबा अजदाद को। अवलो काना आबाउहुम ला याकिलूना, और अगरचे हों उनके बाओजाद ला याकिलूना, कुछ अकल न रखते हों, शैयन, कुछ भी, वला यहतदून, और हदायत पाने वाले ना हों। इसका मतलब है कि वालिदैन भी या अजदाद अगर हदायत पर हों देन उनको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, चाहे हमें उनसे जितनी भी मोहब्बत हो। इसी से हम ये भी बात, अगर कोई उनकी खिलाफ शरअ बात है तो उसको मानना हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, अगर नहीं मानेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अदब का दायरा कार रहना चाहिए और तमीज और मोहब्बत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। व मसलुल्लज़ीना कफ़रू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, का मसलिल्लज़ी, मानंद मिसाल उस शख्स जैसी है, यनइकु, जो चिल्ला रहा है, बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआन व निदान, जो नहीं वो सुनता मगर सिवाय पुकार और निदा के, चीख के या ऊंची पुकार के, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं अकल करते, नहीं याकिलून, समझते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुलू, खाओ, मिन तय्यिबातिन, पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क दी है, वशकुरू, और शुक्र करो, लिल्लाह, अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इन्नमा, सिवाय इसके कि नहीं, हर्रम अलैकुमुल मैतता, तुम पर हराम है मुर्दार, वद्दमा, खून, वलहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर सिवाय अल्लाह के किसी और का नाम बुलंद किया गया हो। ठीक है, ये चार चीजें रिपीट कर दूं क्योंकि ये जरूरी है। चार चीजें जो हराम है, एक है मुर्दार, यानी जानवर जो है अगर तकबीर के बगैर खुद से अपनी तबई मौत मार गया, हलाल है लेकिन हम उसको नहीं खा सकते। ठीक है, इसी तरह दूसरा खून, बहता हुआ खून, ये जो जानवर जीवा करते हैं उस वक्त बहता है ताकि उसको बहने देते हैं, और यही खून जब अंदर जम जाता है तो उसको भी हम इसीलिए साफ करते हैं कि ये हलाल नहीं है। ठीक है, लेकिन तिल्ली और कलेजी भी खून है और जमे हुए हैं, मगर जो खून बहकर आए और जम जाए वो हराम है, ये नहीं हराम। ठीक है, और लहम खिंजीर, सुअर का गोश्त, सारे का सारा, इसकी प्रोडक्ट्स भी हराम है, जितनी भी, जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये यूज करते हैं, सब हराम है। और चौथा, मा उहिल्ला बिही गैरुल्लाह, जिस पर सिवाय अल्लाह के नाम के और की तकबीर पड़ी हो। तकबीर तो खैर अल्लाह की ही होती है। जैसे अगर किसी ने बुजुर्गान दीन के लिए साले सवाब करना है, बकरा किया है, गोश्त किया है, तो उसके ऊपर तकबीर अल्लाह की पड़ी जाएगी, नीयत इसाले सवाब की जाएगी। अगर नाम उसका मशहूर कर दिया जाए कि ये फलां बुजुर्ग का है, फलां का है, क्योंकि ये मुमासलियत है उन काफिरों की जो कि ऐसा किया करते थे, तो इसलिए ये हराम है। ठीक है, तो जब भी कोई भी खाना बनाना है, कोई चीज जिस, या ये देखें तकबीर जिस पर पढ़नी है उस पर अल्लाह का नाम, अल्लाह की शोहरत होनी चाहिए, उसके बाद हम इसाले सवाब कर सकते हैं। देन जिसको मर्जी करें, जब मर्जी करें, ये बिल्कुल हलाल है। ये नहीं है कि ये फलां का है तो हमने नहीं खाना, फलां खत्म है तो नहीं खाना, ये इसमें बस हद से तजावुज नहीं करना। ये मैंने इसलिए साथ साथ थोड़ी सी तफसील बताती हूँ कि ये जरूरी है। फमनिस्तुर्रा, बस जो कोई मजबूर हो जाए, गैर बागिन, बागी ना हो, हद से तजावुज करने वाला ना हो, वला आदिन, और ना हद से तजावुज करने वाला हो, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई खर्च नहीं। यानी जान निकल रही है, बिल्कुल जान निकल जाएगी अगर ना कुछ मुंह में डला, और हराम लुकमा है तो इतना ही खा सकते हैं कि जान बच जाए। ठीक है, यही चीजें आप दूसरों पे कंसीडर कर लें। बाज का सूद है, बिल्कुल हराम है, लेकिन बाज का किसी ऐसी सूरत में कि जब बिल्कुल ही कोई सूरत नहीं निकल रही, तो ये नहीं है कि उसके ऊपर जम जाना है, सिर्फ उस क्राइसिस से निकलने के लिए। वैसे तो अगर निकलने के लिए भी कुछ सूद ले तो वो तब भी वो हम फंस जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह की हदों को पामाल ना किया जाए। लेकिन खसूसन यहाँ जान बचाने के लिए स्पेशल है कि अगर जान बचाने के लिए हमें पता नहीं चल रहा है, जैसे हम अदर कंट्रीज में है जहाँ हलाल हराम जो बहुत मुश्किल से उसकी तमीज होती है, लेकिन जान निकल रही है, तो उस हम उसको चख सकते हैं, खा सकते हैं, दो चार लुकमे बच जाए, और उसके बाद हम हलाल फूड तलाश करेंगे। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन अल्लाजीना, बेशक वो लोग, जब तुमूना, जो छुपाते हैं,
मा अनज़लल्लाहु जो नाज़िल किया अल्लाह ने मिनल किताबी किताब से वयश्तरून बिही समनन कलीला और उसके इवज़ थोड़े मोल लेते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं मा याकुलूना नहीं वो भरते फी बतूनिहिम अपने पेटों में इल्लन नार सिवाय आग के वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा क़यामत वाले दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करे करेगा वला युज़क्कीहिम और ना उनका तज़किया करेगा वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालता बिलहुदा यही वो लोग हैं जिन्होंने जलालत को खरीद लिया है बदले हिदायत के वल अजाब और अजाब बिल मगफिरा मगफरत के बदले अजाब ले लिया है फमा असबरहुम अलन्नार बस किस कदर वो आग पर सब्र करने वाले हैं यानी अल्लाह पाक हैरत कह रहे हैं कि इनको पता है कि ये तजारत इनको फायदा मंद नहीं है फिर भी कितने सुकून से अल्लाह की बगावत कर रहे हैं और गुनाह खरीद रहे हैं अल्लाह का निजात का वादा कर रहा है उसको छोड़कर दुनिया में लगे हुए हैं ये उन लोगों के लिए जो हद से तजावुज करते हैं जालिका भी अल्लाह ये इसलिए कि अल्लाह ने नज़्ज़लल किताब बिल हक नाज़िल की किताब हक के साथ व इन्नल लज़ीना इख्तलफू बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया फिल किताब किताब में लफी शिकाकिन बईद दूर की गुमराही में मुखालफत में पड़े हुए हैं लैसल बिर्रा नेकी नहीं है कि अंतुवल्लु वजूहकुम किबलल मशरिकी वल मगरिबी कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर लो वलाकिन्नल बिर्रा नेकी ये है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर वल मलाइकाती फरिश्तों पर वल किताबिल वन नबीयीन किताबों और नबियों पर अब नेकी की डेफिनेशन है कि नेकी किसको कहते हैं नेकी जस्ट किबले की तरफ मुंह करने का नाम नहीं है अमाल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू शरिया और दो दिया माल अला हुब्बे ही ये बहुत समझने की बात है कि जो भी माल हम देते हैं अल्लाह की मोहब्बत में दें अला हुब्बे ही और जो भी अमल हम नेक करें उसकी नीयत अल्लाह के लिए पहले करें तो फिर वो कबूल ही कबूल है ठीक है इंसानों की मोहब्बत भी जरूरी है लेकिन वो अल्लाह की मोहब्बत के बाद में है यानी हमने रिटर्न अल्लाह से लेना है बंदों से नहीं लेना किसी भी नेकी का वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील और दिया माल उसने अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में ही करीबी रिश्तेदारों को यतीमों को मस्कीनों को राह चलते मुसाफिरों को राह चलता मुसाफिर ये है कि रास्ते में किसी की पूंजी खत्म हो गई इवन के हज पे गया है मोटरवे पे कोई ऐसा है कहता है कि वॉलेट घर रह गया कोई मसला हो गया तो उसको हम दे सकते हैं बस साइलिन और सवाल करने वालों को व फिर रिकाब और गर्दन छुड़ाने वालों को जैसे बेगुनाह कैदी हो उनको छुड़ा सकते हैं ज़कात के पैसों से या इसी तरह किसी का कर्ज है और वो नहीं इस मतलब उसका वो इतना हैंड टू माउथ है कि कर्ज नहीं दे सकता तो हम किसी का कर्ज भी पे कर सकते हैं इसका मतलब यही है व अकामुस्सलाता व आतु ज़काता और दी नमाज कायम की और ज़कात दी और ज़कात सिर्फ मुस्लिम के लिए होती है व अकामुस्सलाता हाँ अल्लाह के लिए हम किसी से भी नेकी कर सकते हैं लेकिन ज़कात का मुसलमानों को लगती है और कायम की नमाज और ज़कात दी अच्छा नमाज कायम करना ज़ाहिरी बातनी दोनों हवालों से इसी तरह ही है कि नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं है कायम करनी है इसलिए कि नमाज का असर मेरे जिस्म पर हो मेरी जान पर रूह पर हो अमल पर हो किरदार पर हो घर पर हो हर चीज पर होना चाहिए मुझे लोगों को बताना ना पड़े कि मैं नमाजी हूँ यानी आपको आपकी डीलिंग देखकर आपका इखलाक देखकर तो लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये नमाजी बंदा है ज़ाहिरी बातनी तहारत और जितने भी मसाइल हैं उन समेत नमाज को पढ़ने को कहते हैं नमाज कायम कर और कुरान में नमाज कायम करने का हुक्म है सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है व आतल ज़कात और ज़कात दी ज़कात से माल बढ़ता भी और पाक भी होता है वल मूफूना भी अहदिहिम और पूरा करते हैं वो अपने अहदों को इसमें मैंने कल भी बताया अहद से मुराद सबसे पहले तो कलमा है जो हमारा अल्लाह के साथ है बाकी कोई देखता है नहीं देखता किसी को कोई कुछ होता है नहीं होता लेकिन हम उस कलमे के पाबंद हैं जब हम उस कलमे के पाबंद हैं तो हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है इसमें कोई नहीं है जब हम इसमें अपनी ख्वाहिशात को ऐड करते हैं ना तब रास्ता कॉम्प्लिकेटेड होता है वरना ये सीधा रास्ता है फरमाया कि वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा अहदू और वो अहदों को पूरा करते हैं जब वो अहद बांध लेते हैं वस्साबिरीन फिल बासाई व ज़राई और जो सख्ती और मुसीबत में सब्र करने वाले हैं वाहीन अलबास और जंग के दौरान भी उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून और यही है जो परहेजगार हैं
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर किसास फर्ज कर दिया गया है, फिल कत्ल, कत्ल के बारे में। अल हर्रु, आजाद, बिल हुर्री, आजाद के बदले, वल अब्दु बिल अब्द, गुलाम, गुलाम के, वल उनसा बिल उनसा, और हाँ जी, दूसरा पारा आयत नंबर 177। और अपने माइक म्यूट कर लें काइंडली, रिकॉर्डिंग भी साथ हो रही है ना इसलिए। या हैं? आमनु कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु, ए ईमान वालों, तुम पर किसास फर्ज कर दिया गया है कत्ल के बारे में। अल हुर्रु बिल हुर्री, आजाद, आजाद के बदले में, वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम, गुलाम के बदले में, वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले में। फमन उफिया, ये चुप कर गए। फमन उफिया, बस जो कोई माफ कर दिया गया लहू उसको, मिन अखी ही, अपने भाई की तरफ से, शयउन कुछ, फ़इत्बाउन बिल मारूफ, तो वो अदा करे अच्छे तरीके से, फ़इत्बाउन बिल मारूफ, तो वो इसको यानी कि अच्छे तरीके से इस सारे मामले को करे, व अदाउन इलैहि बेहसान, और एहसान यानी अच्छे तरीके से इसको अदा करे। इसमें ये है कि अगर कसास है तो उसमें भी बिल मारूफ है, खुद कानून को हाथ में नहीं लेना। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो खुद नहीं मार सकते आप, बिल्कुल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, गवाह होंगे, उसके बाद आप, ये प्रोसेस होगा, खुद पर्सनली नहीं आप किसी को कत्ल कर सकते। इसी तरह अगर कोई माफ कर दे खून बहा, तो वो जो दहियत होती है, खून बहा जिसको बोलते हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से, जिसने खून बहा लेना है यानी जिसका कोई मारा गया है, अगर वो माफ करके खून बहा ले रहा है तो वो भी हद से तजावुज ना करे कि करोड़ों में रुपए मांगने शुरू कर दे, अच्छे तरीके से। ठीक है, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम, ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा, और रहमत है। फमन तादा, बस जो कोई हद से तजावुज़ करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल किसासी हयातुल, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो, कसास में जिंदगी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। कसास में जिंदगी का मतलब यही है कि जालिम का हाथ जब तक ना रोकेंगे जुल्म बढ़ जाएगा। अगर कोई आदी है, पेशावर है, ढीठ है, उसका काम ही यही है, फिर कसास होना चाहिए। लेकिन अगर किसी से बाय मिस्टेक हो गया है, खानदान की तरबियत ऐसी नहीं है, दोस्तों की महफिल में या कुछ हो गया है, यानी उससे ऐसा, वो फैमिली भी नहीं थी, लेकिन उससे अगर हो गया है, तो अगर तुमने माफ कर दिया है तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन जालिम जो है उसका हाथ फिर रोकना जरूरी है, इसी में जिंदगी है। क्योंकि फिर अगर हम ना लेंगे ना, अगर जालिम को नहीं नहीं रोकेंगे, तो फिर हम गोया उसके जुल्म में शरीक हैं। कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया है अलैकुम, तुम पर, इज़ा हदरा, जब आ जाए, अहदकुमुल मौत, तुम्हारी, तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए, इन तरह का खैरा, अगर वो माल छोड़े, निल वसीयत हो, कि वो वसीयत करे, लिल वालिदैनी, ये मनसूख हो गई है अब आयत, इस पर अमल नहीं होगा, लेकिन ये कुरान का हिस्सा है। जब शरीयत ने वरासत लिख दी है ना, वरासत में हिस्से कर दिए, क्योंकि पहले अरब में वरासत नहीं थी और लोग माल हड़प कर जाते थे, तो ये उस वक्त ये आयत उतरी थी। ये आयत मनसूख है, लेकिन अमल अब विरासत के अकॉर्डिंग ही डिवीजन होगी, दो हिस्से बेटे के, एक बेटी का। ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में ही अगर वालिदैन करना चाहें तो जिसको जो मर्जी दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं, लेकिन विरासत फौत होने के बाद बनती है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रकुम अहदकुमुल मौत इन तरका खैरा, फर्ज है किया गया है तुम पर, जब तुम में से किसी को मौत यानी कि वो मौत के करीब हो, कि अगर वो माल छोड़कर जा रहा है, कि वो वसीयत कर जाए, लिल वालिदीनी, वालिदैनी, वालिदैन को, वल अकरबीनी, और रिश्तेदारों को, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, हक्कन अल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के ऊपर लाजम है, हक है। फमन बदलहु बादा मा समियाहु, और जो कोई बदल डाले उसको सुनने के बाद, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, बस वाइस कि नहीं, इसका गुनाह उन लोगों पर है जो उसको बदल डालते हैं। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। फमन खाफा मिन मूसिन, और जिसको खौफ हो वसीयत करने वाले से, जनफन और इसमन, तरफदारी का या गुनाह का,
असलाह बैनहुम, तो वो सुलह करा दे, फला इस्मा अलैहि, बस उस पर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसका मतलब ये था कि मौत का वक़्त है और सही से बोला नहीं जा रहा, और वो वसीयत कोई गुनाह की अगर कर रहा है तो फिर जो सुन रहा है तो वो गुनाह वाली वसीयत को आगे इम्पोज नहीं करेगा, अब उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है, वो उसको दुरुस्त कर सकता है। या अय्युहल्लज़ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजों का जिक्र आ गया है। देखिए इसमें कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, यानी कि रोजे का मकसद तकवे का हसूल है। अय्याम अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन है। फमन काना मिनकुम मरीजन, बस जो कोई तुम में से हो मरीज, औ अला सफरिन, या किसी सफर पर हो, फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। बिल्कुल क्लियर हुक्म है, ये रोजे जो लेडीज छोड़ती है ना तो इनको रखने पड़ेंगे। व अलल्लज़ीना, और वो लोग युतीकूनहु, जो इसकी ताकत रखते हैं कि वो फिदियतुन ताम मिस्कीन, तो वो फिदिया दे, मिस्कीन का खाना, यानी वो रोजा नहीं रख रहे तो फिदिया उसका मिस्कीन का है। फमन ततव्वा खैरन, बस जो कोई रगबत के साथ भलाई करे, फहुवा खैरुल लहू, ये उसके लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। मैं इसलिए बता दूं कि रोजा, जैसे कि नहीं है कोई बीमार हो गया रमजान में, तो वो रोजे छोड़ रहा है ना, तो उसने क्या करना है, वो रोजे रखवा भी देने हैं किसी को, ठीक है, और जब खुद ताकत आ जाएगी तो वो रख भी ले। हम रोजा जो रखवा देते हैं वो से वो अदा नहीं हो जाता हमारी तरफ से, अगर हमें दोबारा से सेहत मिल गई है तो हमने उसको गिनती को पूरा कर, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जो नहीं रख सकते वो उनका हो जाएगा। शाहरुर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान रमजान का महीना जिसमें हमने नाज़िल किया है कुरान को, ये रमजान और कुरान डबल ब्लेसिंग है। हुदन हदायत लिन्नास, लोगों के लिए, वबय्यिनात, और खुली निशानी, रोशन निशानियां, मिनल खुदा, हदायत से, वल फुरकान, और हक और बातिल में तमीज करने वाली ये जो निशानियां हैं। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, बस जो कोई तुम में से पाए इस महीने को, फल यसुमहू, बस चाहिए कि उसको रोजा रखे। वमन काना मरीजन, और जो कोई मरीज हो, और अला सफरिन, या किसी सफर पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती गिनती पूरी करें। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह चाहता है तुम्हारे साथ आसानी, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और तंगी नहीं देना चाहता तुम्हें, वाले तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी करो, वाले तुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, जो उसने तुम्हें हदायत दी, यानी शुक्र के साथ रोजा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, ठीक है। वाला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वाइजा साला का, और जब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे पूछे, इबादी, मेरे बंदे, अन्नी, मेरी बाबत, बहुत ही प्यारी आयत है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तेरे पास आकर मेरा एड्रेस पूछे कि अल्लाह कहाँ है, फाइन, तो बताओ उनको क्या बताना है, फाइन्नी करीबन, बस मैं तो उनके करीब ही हूँ, बेशक। उजीब हूँ दावत दाई, मैं तो दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, इजा दानी, जब वो मुझे पुकारता है। इसका मतलब है हर सूरत अल्लाह हमें सुन रहा होता है। दुआएं कबूल होती हैं, कुछ फौरन हो जाती हैं, कुछ के बदले तकलीफें दूर कर दी जाती हैं, और कुछ आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाती है। तो फरमाया अब करने का काम क्या है, अल्लाह तो सुनता है, फल यस्तजीबू ली, अल्लाह की तरफ से भी एक बात है, मेरा कहना माना, तुम चाहते हो मर्जियां अपनी करो, और मेरी तरफ से कोई, मैं हर वक्त तुम्हारी दुआओं को भी सुनता हूँ मैं दुआएं, लेकिन फल यस्तजीबू ली, मेरा हक है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरा कहना मानो। वल युमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो यरशदून, तो को हिदायत पा जाए। उहिल लकुम, तुम्हारे लिए, लैलत सियामी, रोजों की रातों में, रफसु इला निसाइकुम, अपनी औरतों की तरफ रगबत करना, जा जाना, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबास, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। बेहतरीन आयत है, इससे बेहतर किसी दीन में डेफिनेशन नहीं हो सकती मर्द और औरत की, कि ये रिश्ता लिबास है। लिबास क्या होता है, मर्द की शिकायत ना करना, जैसे रखे उसमें गुजारा करना, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करना, हर लिहाज से उसके मतलब अपनी तकदीर पर भी राजी रहना, बातों को बाहर ना निकालना,
ये सारी चीजें हैं। जिस तरह लिबास जीनत है, हमारे ऐब छुपाता है, जिस्म के दाग धब्बे दूर करता है, इसी तरह ये रिश्ता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। आलिम अल्लाह, जानता है अल्लाह, अन्नकुम कुंतुम, बेशक तुम थे, तख्तानूना अनफुसकुम, अपनी नफ्सों में खयानत करते, फताब अलैकुम, वो फिर आया ऊपर तुम्हारे, व अफा अनकुम, और उसने माफ कर दिया तुमको। फल आना कस आओ बाशिरुहुन्ना, उनके पास मुबाशरत के लिए वक्त हो, मा कतबल्लाहु लकुम, और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। यानी बेसिक मकसद जो है वो इंसानी बका है। ठीक है। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए अल खैतुल अबयदु, सफेद डोरा स्याह डोरे से, मिनल फजर, फजर फजर तक, फजर का। सुम्मा अतिमुल सियामा, फिर पूरा करो रोजे को, इलल लैली, रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना, और मत उनके करीब जाओ, मुबाशरत करो, वन तुम आकिफूना फिल मसाजिद, तुम मस्जिदों में एहराम वो इतिकाफ में हो तो। दिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हद है। फला तकरबूहा, इनके करीब ना जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नास, इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए बातों को वाज़ेह फरमाता है, कामात को। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम उससे डरो। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और मत खाओ आपस में बाल बातिल तरीके से, व तुदलु बिहा इलल हुक्काम, और ना उनको पहुंचाओ हुक्काम की तरफ। ली ताकुलु फरीकम मिनल अमवालिन नास, ताकि एक फरीक खाए लोगों के माल, बिल इसमें गुनाह के साथ, पर अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। वह सलून का अनिल अहिल्ला, और वो हलाल यानी कि नए चांद के बारे में। हलाल कहते हैं पहली का चांद, पहली और दूसरी का, और कमर उसके बाद का चांद, और जब वो 14वीं का चांद होता है उसको क्या कहते हैं, बदर। कुल फरमा दें कि या मवाकीत लिन्नास, ये निशानियां हैं लोगों के लिए, वल हज, और हज की। जैसे चांद शुरू होता है ना, तो तभी हमें पता चलता है, जैसे रमजान का चांद नजर आएगा तो रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, हज का आएगा तो हज का हो जाएगा। तो ये निशानी है। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी भी, अंतातुल वयूता, कि तुम आओ घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, उसकी पुश्तों से। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी ये है तक कि जो डर जाए या तकवा इख्तियार करे। वातुल वयूता मिन अब्वाबिहा, और आओ घरों में उनके दरवाजों से। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरो शायद कि तुम फलाह पा जाओ। वकातिलू फी सबिलिल्लाह, और लड़ो अल्लाह की राह में। अल्लाह जीना, उन लोगों से, युकातिलूनकुम, जो तुमसे यानी कि तुम्हें कत्ल करते हैं। वला तादू, और मत हद से तजावुज करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदिन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी पहल करने का हुक्म नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादती करे तो उसका जवाब दो। वक्त लूहुम, और पाओ उनको, वो कत्ल करो उनको, खैसु सकिफ्तमूहुम, जहाँ तुम उनको पाओ। व अखरिजूहुम मिन खैसु अखरजूकुम, और निकालो उनको जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना तो कत्ल से भी शदीद है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और उनको मस्जिद हराम के करीब कत्ल ना करो। हत्ता युकातिलूकुम, या जब तक कि वो तुमसे यानी कि जंग ना करे। यानी अगर हरम के अंदर भी अगर कोई आपसे जंग करता है, वो पहल करता है, तो फिर आप उसको आंसर दे सकते हैं। फाइन कातलूहुम, बस अगर वो कातलूकुम, अगर तुम्हें कत्ल करें, फक्तलूहुम, तो उनको भी मारो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों का। फाइन इंतहौ, बस अगर वो बाज आए, फाइन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और जंग करो उनसे यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। वयकून दीनु लिल्लाह, और सारा दिन अल्लाह के लिए हो जाए। फाइन इंतहौ, बस अगर वो बाज आ जाए, फला उद्वाना, और तो नहीं है ज्यादती, अला इल्ला अल ज़ालिमीन, सिवाय जालिमों पर। यदि बाज आ जाए तो तुम फिर भी, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम फिर उन पर ज्यादती ना करो। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है। वल हुरुमात किसास, और हुर्मतें जो है वो बदला है। फमनी तादा, पस जो कोई हद से बढ़ जाए, अलैकुम ज्यादा करे तुम्हारे ऊपर, फातदू अलैहि बिमिस्ला मा तादा, तो उतनी ही करो जितनी उसने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और खूब जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन,
اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحسِنُوا اور نیک عمل کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین اللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، تفسیر اس کی لیکن ٹائم شارٹ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اسراف نہ کرو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، اپنے لمٹس کراس نہ کرو، اپنے آپ کو مینج کرو اکارڈنگ ٹو شریعہ، ہر کام میں، عبادات، معاملات، ہر چیز میں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی ہر نیکی ہی اللہ کے لیے ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بس اگر تم محصور ہو جاؤ، روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو میسر ہو قربانی کے جانور میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور مت منڈواؤ اپنے بالوں کو، حتیٰ یبلغ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ ہے کہ پہلے زمانے میں پیدل جایا کرتے تھے، ساتھ قربانی کے جانور تھے، بیماری ہو جاتی، کوئی روک لیتا، جنگ ہو جاتی، تو فرمایا ہے کہ اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ اور قربانی کا جانور کسی دوسرے کے ہاتھ بھیج دو، اور جب سمجھ لو کہ اس کو قربانی کا جانور ہو گیا ہوگا تو پھر اپنے سر منڈواؤ۔ آج بھی جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جب تک حج میں تو جب تک کنفرمیشن نہیں آتی کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تب تک نہیں نہ منڈواتے بات، اور احرام کی پابندیاں اس کے بعد کھولتے ہیں۔ فمن کانا منکم مریض بس جو کوئی تم میں سے ہو مریض اور بھی اذن یا اس کے سر میں مر راسے ہی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دے روزوں کا، اور صدقن صدقہ دے، اور نسکن قربانی دے، فائدہ امنتم پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج جو کوئی تمتع کا فائدہ اٹھانا چاہے ساتھ عمرے کے حج تک، فمستیسر من الہدی بس جو کوئی میسر ہو قربانی میں سے، فمن لم یجد اور جو کوئی نہ پائے فصیام بس وہ روزہ رکھے ثلاثۃ ایام 3 روزے فی الحج حج کے دنوں پہ، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو، تل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے، ذالکا یہ اس کے لیے ہے یہ حکم، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام جو مسجد یعنی کہ وہاں کے رہائشی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ باہر والوں کے لیے ہے یہ حکم۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ الحج حج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہے، ومن فرض فیہن الحج پس جو کوئی فرض فیہن جو کوئی ادائیگی حج یعنی کہ اس نے قصد کر لیا حج میں ہو گیا، یعنی فلا رفث ولا فسوقا تو کوئی بے حیائی نہیں، کوئی برائی نہیں، گناہ نہیں، ولا جدال اور نہ جھگڑا ہے فی الحج حج میں، حج کے دوران جیسے ہی قصد کر لیا ہے نا تو پھر اپنا آپ جو ہے وہ سیٹ کر لو، کیونکہ اکارڈنگ ٹو اللہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو تو اس کی حدود کو جو ہے وہ پامال نہ کرو، اس میں نہ لڑائی، بے حیائی، برے کام، جھگڑا کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں تو احرام باندھے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم کرو بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا اور زادے راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تقوی بہترین توشہ تقوی ہے۔ سامان کے بغیر نا منہ اٹھا کے چلے جانا، اتنا پیسہ لے کر جانا کہ کمفرٹیبل رہو اور وہاں تمہیں کہیں مانگنا نہ پڑے، لیکن بہترین زاد راہ تقوی ہے، توشہ ہے، سفر کا سامان میں تقوی یعنی ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ مجھ سے ہی ڈرو اے عقل مندو، یعنی ہم عقل مند اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ مینج کر لے اور کبھی اس کو مانگنا نہ پڑے، کبھی اس کا بڑا اچھا آرگنائز سسٹم چلا رہا ہو، اللہ کہتا ہے عقل والا وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی حرج ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب سے، فائدہ افضتم من عرفات اور جب تم لوٹو عرفات سے، فذکروا اللہ عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے قریب اللہ کا ذکر کرو، وذکروہ اور اس کا خوب ذکر کرو، کما ہداکم جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، یعنی سنت طریقے سے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اس سے پہلے اگرچہ تم نہیں جانتے تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر لوٹو
जहाँ से लोग लौटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। फाइजा कज़ईतुम मनासिकाकुम, और जब तुम पूरे कर लो मनासिक हज के, फज़कुरुल्लाह, बस अल्लाह का जिक्र करो, का जिक्रिकुम आबाकुम, जैसे कि तुम अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते हो, और अशद्दा जिक्र, या उससे भी ज्यादा। वमिनन नासी फमिनन नासी, बस लोगों में से, मैं यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, जो कहते हैं अल्लाह में दुनिया दे, वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, तो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम, और उनमें से, मैं यकूलु, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार, जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी दे और आखिरत भी भलाई वाली दे, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये बेहतरीन दुआ है। ये दुआ पढ़ ले तो सारी दुआएं आ जाती है इसमें। और हसना से मुराद दुनिया का हसना क्या है? नेक औलाद, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला माल, नेक बीवी, नेक शौहर, अच्छा हमसाया, दीन में मदद करने वाली जमात, अच्छे लोगों का साथ, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। ठीक है। उलाई का, यही वो लोग हैं, लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, जिनके उनके लिए हिस्सा है उनकी कमाई में से। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, फी अय्यामिन मादूदात, गिनती के दिनों में। फमन तअज्जला फी यौमैनि यौमैनि, बस जो कोई जल्दी करे 2 दिनों में, फला इस्मा अलैहि, तो कोई हर्ज नहीं। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, और जो ताखीर करे उस पर नहीं। ये यहाँ मिना में क़याम के मुतल्लक है ये मसला। लेकिन ये कि 2 दिन लगाओ या 3 दिन लगाओ, इसमें गुनाह हर्ज नहीं है। असल मकसद तकवा है। ठीक है। लिमन इत्तका, उसके लिए है जिसने, जो बच रहा, बचना या तकवा एक ही चीज है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालम, और खूब जानो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुम उसी की तरफ हशर किए जाओ, इकट्ठे किए जाओ। वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, लोगों में से ऐसे भी हैं भली लगती है उनकी बात दुनिया की जिंदगी में। वयुशहिदुल्लाह, और वो गवाह करता है अल्लाह को, अला माफी कल्बिही, जो उसके दिल में है। वहुवा अलद्दुल खिसाम, हालांकि वो सख्त झगड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बात बात पे कस्में खाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे होते हैं, लेकिन करीब आए तो इंतहाई कड़वे होते हैं। तो फरमाया वो अलदुल खिसाम, सख्त झगड़ा। वाइदा तवल्ला सा फिल अर्जी, और जब वो फिरता है जमीन में, कोशिश लियुफसिदा फीहा, तो वो क्या करता है ताकि वो फसाद करे इसमें, जमीन में। और युहलिकल हर्सा वन नस्ल, और हर्स खेती और नस्ल को यानी हलाक करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। ये बेसिक मुनाफिकों के बारे में है। लेकिन अगर आज हम में से भी कुछ लोगों की फितरत ऐसी है तो हमें अपने नज़र करनी चाहिए, और मुनाफिकाना तर्ज अमल और वो चीज़ें जिनसे हमें मुशाबहत मिलती है, जिन नापसंदीदा लोगों से, तो हमने, यानी कि ये रमज़ान एक ऐसी ब्लेसिंग है कि इसमें हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी आदतें बद भी छोड़ दें। और क्योंकि बेसिक पता क्यों अल्लाह ताला का इतना तकाजा है रमज़ान में, शैतान बंद है, झगड़े आ जाना है, कल से झगड़ उसने वो। अब अगर शैतान नहीं है तो उसके बाद हमारी सुस्ती है, कोताही है, रोज़ा नहीं रख रहे, कुरान नहीं खोल रहे, दीन की तरफ नहीं आ रहे, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं करते, तो फिर ये हमारी टोटली हमारे भी भाग पे हमारा अपना गुनाह। शैतान झगड़ा हुआ है। नफ्स, हमारे नफ्स बड़े स्ट्रांग है, हमने नफ्सों को पाला ही बड़ा है। हमने 90% बदन पाला है, रूह तो हम बहुत कम पाल रहे हैं। तो ये रूह को पालने का महीना है। तो शैतान, हालांकि शैतान इख्तियारी गैर इख्तियारी हर जगह हमारे पास आ जाता है और वो रहता है हमारे साथ साथ। तो ये शैतान तो बंद है बड़ा। तो अब हर वो चीज शैतान बन जाएगी जो हमें रोकेगी, वो बड़ा शैतान बंद है। इसलिए अगर हम रमजान में सुस्ती कर रहे हैं ना, तो ये अपना खालिस अपना भी हाफ है। इसीलिए अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह अब तो तूने हमारे, मैंने देखिए शैतान बंद करके, जन्नत के दरवाजे खोल के, जहन्नुम बंद करके, रहमतों की बरसात करके, सेल लगा कर, ताक रातें देकर, सहरी और इफ्तारी में बरकतें रखकर, और इतना कुछ करके इतने पैकेज अल्लाह ताला दे रहा है, फिर नहीं लेंगे तो फिर तो आप देखें।
वाइजा की लाला कुत्ता किल्ला, और जब उन्हें कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, अखज़त कुल इज्जा, तो वो इज्जत का मसला बना लेता है, ईगो जिसको आजकल बोलते हैं, बिल इसमी। तो वो उसकी जो वो है ना, अखज़त कुल इज्जा तो बिल इसमी फहस्बु जहन्नम, यानी कि उसको फिर अपना नफ्स, उसकी जो यहाँ क्या लिखा है, हाँ उस, नहीं नहीं वो उससे पीछे, तो उसको उसकी जो इज्जत है या गुरूर जो है वो उसको गुनाह पर, हाँ, यानी कि उसका जो गुरूर है वो उसको फिर गुनाह पर कहता है कि तो कहता है नहीं नहीं कुछ कोई बात नहीं, कभी वो रस्म का नाम ले लेगा, कभी अपनी कोई बशरी तकाजा बता देगा, कभी कोई मजबूरी बता देगा, कभी औलाद को आगे ले आएगा, कभी माल का मसला, कभी कोई ना कोई मसला हमने, तो फरमाया ये उसके लिए है जो समझ कर भी नहीं समझता। फहस्बुहु जहन्नम, उसको जब दावत दी जाती है कि भाई अपना आप ठीक कर लो, फहस्बुहु जहन्नम वाला बिसल महाद, और बहुत ही बुरा बिछोना, व मिनन नासी, और लोगों में से मैं यशरी नफ्सा हूँ, जो बेच देते हैं अपना आप। क्यों बेचते हैं? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियां लेने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयत है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बहुत रऊफ है, शफकत वाला है अपने बंदों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, देखिए कितनी प्यारी आयत है कि ऐ लोगों दाखिल हो जाओ दीन में। यहाँ दीन नहीं कहा, सिल्म काफा, सलामती वाला दीन है हमारा, यानी हम बहुत सिक्योर हो जाएंगे जब हम अल्लाह की बात को मान लेंगे। तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के पीछे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन। फाइन जलल तुम मिन बादि मा जातकुम बय्यिनात, इसके बाद अगर तुम फिसल जाओ उसके बाद के आयत बय्यिनात आ गई, फालमू खूब जान लो अल्लाह अजीजुल गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। हल यंजुरूना, क्या वो मुंतजिर हैं, इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी जुलुलिम मिनल गमाम, कि अल्लाह आए उनके पास बादलों के सायों में, वल मलाइकातु, और फरिश्ते, वकुज़िल अम्र, और मामला खत्म हो जाए। यानी अब अल्लाह के आने का इंतजार है, अल्लाह ने तो नहीं आना ना, अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया, किताब उतार दी। अब अल्लाह जिस दिन आएगा वो उम्मत के फैसले करने आएगा, हशर वाले दिन वो आएगा, अपना आप दिखाएगा। यहाँ मस्तूर है, तो इसका मतलब ये है कि बिन देखे का सौदा है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह को देखेंगे तब नहीं करेंगे, या फरिश्ता हमारे साथ, और फरिश्ते ने भी उस वक्त आना है जब जान का निकाह होगा, वक्त रजा के वक्त। अदरवाइज फरिश्ता कभी किसी ने देखा? नहीं देख सकते। उस वक्त वकूज़ी अल-अम्र, मामला खत्म हो जाएगा। जिसको कहते हैं ना गेम ओवर हो जाएगी। वाइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और उसी की तरफ तुम्हारे तमाम अमूर पलटा दिए जाएंगे। सल बनी इसराइल, पूछो बनी इसराइल से, कम आते ना हम मिन आयात बय्यिना, हमने कितनी उनको रोशन निशानियां दी। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, और जो कोई अल्लाह की नेमत को पाने के बाद, जब उसके पास क्लियर कट आ जाए उसके बाद बदल डालता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब देने। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, रास्ता कर दी गई लोगों के लिए, काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी। दुनिया तो काफिर की है। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वो तमस्कर उड़ाते हैं ईमान वालों का। वल्लज़ीना तक़व्वू फ़हुम यौमल क़ियामा, और वो लोग जिनका ये आज मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये क़यामत वाले दिन उनसे ऊपर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क दे दे। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, सारी उम्मत वाहिद ही है थी। फ़अबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, बस मबूस फरमाए अल्लाह ने नबी और फिर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। व अनज़ला माअहुल किताब, और नाज़िल की साथ उसकी किताब, बिलहक़, हक़ के साथ, लियहकुम बैनन नास, ताकि वो फैसला फरमाए लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू, जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, व मख्तलफ़ फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और नहीं इख्तिलाफ किया इसमें मगर उन लोगों ने जिनको किताब दी गई थी इसके बाद कि आ गई उनके पास रोशन बैनात, बगियम बैनहुम, बाहमी सरकशी से, फहदल्लाहु लज़ीना आमनू, बस हदायत दी अल्लाह ने ईमान वालों को, लिमख्तलफू फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही,
उन बातों में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे अपने हुक्म से बिज़निही वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। सुबह अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। साथ साथ जो दुआ आयत की समझ आए और दिल को लगे, साथ साथ उसके अकॉर्डिंग अपनी दुआएं करते रहा करें। कुरान पढ़ते वक्त दुआ करना सुन्नत मुबारक है, क्योंकि उस वक्त दिल भी नरम हुए होते हैं और सकीना नजूल होता है, फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द हैं। इस वक्त हमें कोई फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुरान कहता है, हदीस कहती है कि फरिश्ते महफिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में? कैसे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और नहीं तुम्हारे पास आए मिसाल उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुके। मस्सतहुमुल बासा व ज़र्राउ व ज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल, यहाँ तक कि छुआ उनको, पहुंची उनको तकलीफ, सख्ती, हला दिए गए, यहाँ तक कि कह उठा रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, और वो लोग जो उनके साथ थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अला, सुनो, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सुनो अल्लाह की मदद करीब ही है इंशाअल्लाह। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ए महबूब वो आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें? फरमा दे, कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम माल में से खर्च करो, फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन, वो वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, वब्न सबील, राह चलते के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैर, और जो भी तुम खैर यानी भलाई करो, फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, अल्लाह उसको खूब जानता है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, वहुवा कुरहुल लकुम, और वो तुम्हें ग्रां है, नागवार गुजरता है, व असा, और मे भी हो सकता है कि अन तकरहु शैया, कि तुम किसी चीज को यानी पसंद ना करो, वहुवा खैरुल लकुम, और तुम्हारे हक अंदर बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पेरेंट्स रोकते हैं बात बातों से तो हमें उस वक्त बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जब अंजाम हम देखते हैं और खुद उस लेवल पे जब जाके खड़े होते हैं, जैसे खसूसन बच्चियां शादियों के बाद माँ की बातें याद आती हैं, पेरेंट्स की नसीहतें याद आती हैं, तो लगता है कि वो उस टाइम तो ऐसे गुस्सा कर लेते थे। तो इस तरह हर मामले में हम शरीयत को देखेंगे, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देखेंगे, और ज़ाहिरी जो तकाज़े जो हमें कहा गया है वो देखेंगे, और उसके बाद अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, क्योंकि हम देख कर भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते, हम देख के भी अंधे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि तुम ज़ाहिर किसी चीज़ को नापसंद करो, लेकिन उसका अंजाम तुम्हारे हक अंदर बेहतर हो। और मैं भी अन तुहिब्बु शैया, और तुम टूट के किसी चीज़ को चाहो कि ये मुझे मिल जाए हर सूरत, वह हुआ शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए हक अंदर अच्छी ना हो। तो यहाँ पे ऐड कर दूं, अल्लाहुम्मा अहसिना की बात आना फिल उमूरी कुल्लिहा वाजिरना मिन खज़्यि दुनिया व अज़ाब, ये हदीस पाक की दुआ है ना जो बहुत प्यारी। अल्लाह अहसिना की, हम हमारे हर काम में हमारे अंजाम अच्छे कर दे, और हमें दुनिया की रुसवाई से भी बचा ले और आखिरत के अजाब से भी बचा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यसअलूना कान शहरिल हराम किताबन फीह, वो पूछते हैं हुर्मत वाले महीने में जंग करना। कुल किताबन फीह कबीर, इसमें जंग करना गुनाह कबीरा है। वसद्दुन अन सबीला, लेकिन रोकना अल्लाह की राह से, व कुफ्रुन बिही, और उसका इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से लोगों को रोकना, व इखराजु अहलिही मिनहु, और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना, अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ इससे भी बड़ा गुनाह। वल फितना तो अकबरु मिनल कत्ल, बार बार कहा जाता है फितना कत्ल से भी शदीद है। आप देखते नहीं है कि घर के अंदर अल्लाह ना करे कोई किसी में अगर ऐसी आदत हो, फसाद वाला हो, तो वो आग ही लगा छोड़ता है। तो ये कत्ल से भी शदीद है, इसलिए फितना पसंद नहीं किया गया हमारे दीन के अंदर। वला यजालूना युकातिलूनकुम, और वो रहेंगे लड़ते तुमसे, हत्ता यारद्दूकुम, जहां तक कि तुम्हें लौटा ना दे, फेर ना दे, दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, अगर वो ऐसा कर सके। वो मैं यरतदिद, और जो कोई फेर दे, फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, और वो इस हाल में मर जाए, फहुवा काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है।
मुसलमान होने के बाद अगर कोई दीन छोड़ देगा ना मुसलमान तो उसको कत्ल करना है, लेकिन खुद नहीं करना, रियासत करेगी। हौलाई का बस यही वो लोग हैं, हबीतता मालूम जिनके अमाल अकारत हो गए, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में, मौलाई का साब नार, यही वो लोग हैं जो उसकी हम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहे। हम भी ये बन सकते हैं। किस तरह? हिजरत वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ली, और उसके बाद जब पाकिस्तान बना, एक हिजरत ये है जो इस्लाम के नाम पर है। लेकिन आज हम हिजरत कर सकते हैं। इस रमजान हम अपनी वो गुनाह छोड़ दें, वो बुराइयां छोड़ दें जो पहले थी, तो हम भी मुहाजिर ठहरेंगे। ईमान लाने के बाद हिजरत कर की जिन्होंने, और फिर उस पर पक्के रहे, वजाहदू फी सबिलिल्लाह, उस प्रैक्टिस को करते ही रहे, छोड़ी नहीं नेकी करनी। हम्म? तो उलाई का यरजून रहमत, यही वो लोग हैं रब की रहमत के उम्मीदवार हैं, वल्लाहु अगर अच्छा काम करना शुरू करो तो उसको आगे कंटिन्यू करो, मरते दम तक उसको जारी रखो। इसीलिए एक महीने की फ्यूल जो मिल रहा है ना इतने आसानी के साथ, उसको इतना हम ले जाएं कि अल्लाह करे हमारे 11 महीने आसानी से गुजर जाएं, और फिर हमें अगर जिंदगी रहे तो फिर रमजान मिल जाए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। यसअलूना कानिल खम्रि वल मैसिर, वो पूछते हैं आपसे जुए इसके खमरी वल मैसिरी, जुए का और शराब और जुए का, कुल फरमा दे फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, इस दोनों में गुनाह है बड़ा और नफा है लोगों के लिए, लेकिन वो थोड़ा है ना। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, और इन दोनों का गुनाह उसके नफे से ज्यादा है, यानी गुनाह ज्यादा है। गुनाह नफा है लोगों के लिए और गुनाह भी है, और गुनाह बड़ा है। हाँ जी, उसके नफे से। ठीक है, ये मनसूख आयत है। वयसअलूना का माजा, यानी मनसूख का मतलब है तलावत होगी, सवाब भी मिलेगा, लेकिन हुक्म जो है वो कतई शराब और जुए की हुर्मत का है, वो उस पर इम्प्लीमेंट करना है हमने। अब कोई दीन की किताब, इस किताब में से इस आयत को ले देखें, इसमें लिखा है नफा है, इसमें इसका मतलब हम तो इसका नफा ले रहे हैं। आप तो कारोबार करते हैं। हाँ, तो हमने कुरान से इसको लिया है? नहीं, इसमें हम आप सब, इसीलिए तो कुरान को समझने के लिए हदीस पाक का समझना बहुत जरूरी है। वयसअलूना का माज़ा युनफिकून, और कहते हैं हम क्या खर्च करें, कुलिल अफ़ू, फरमा दिए जो बच रहे, बच जाए। अब बच जाए से मतलब ये नहीं कि अपनी ही अनलिमिटेड ख्वाहिशात ही पूरी ना हो तो फिर हम बचाएंगे क्या। बच रहे का मतलब ये है अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद फिर कि तुम फिर खुद ना तंग दस्त होके मांगने लग जाओ, ये मतलब है। ये नहीं है कि खुद बहुत इसराफ की राह पे चलो तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो वो सारा कुछ कम हो जाएगा। तो जो बच रहे, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, इसी तरह अल्लाह खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में। वयसअलूना का अनिल यतामा, और वो यतीमों की बाबत आपसे पूछते हैं। कुल फरमा दे इस्लाहुल लहुम खैर, उनके लिए उनकी इस्लाह करना बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फ इख्वानुकुम, और अगर उनका माल तुम आपस में मिलाकर खाते हो, फ इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई है। यतीम वो होता है जो बलूगत से पहले बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाए। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदु मिनल मुस्लिह, और अल्लाह ताला खूब जानता है फसादी को इस्लाह करने वाले से। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता लअनतकुम, अलबत्ता तुम मुशक्क़त में पड़ जाते। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकाती, और मत निकाह करो मुशरिक औरतों से, हत्ता युमिन, जब तक कि वो ईमान न ले। वल वाला अमातु मोमिना, और लौंडी ईमान वाली, खैरुम मिन मुशरिका, मुशरिक से बेहतर है। वलो अजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें भली भी लगे। वला तनकिहुल मुशरिकीना, और मत निकाह करो मुशरिकों से, हत्ता युमिनु, जब तक कि वो ईमान न ले आए। वल अब्दुल मोमिन, और अब्दे मोमिन यानी गुलाम लेकिन हो ईमान वाला, खैरुल बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक से। वलो अजबकुम, अगरचे वो तुम्हें भला लगे। उलाइका
यही वो लोग हैं यदऊना इलन्नार, जो बुलाते हैं आग की तरफ, वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, वल मगफिरा, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्नी, अपने खास जनाब से, हुक्म से, वयुबय्यिनु, और वो खोल कर बयान करता है आयात ही, अपनी आयतों को, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो। वयसअलूनका अनिल महिज़, और वो हैज के बारे में पूछते हैं, कुल फरमा दे, हुआ अज़न, ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है, फ़ताज़िलुन्निसा, पस अलहदा रहो औरतों से, फिल महीज़ि, हैज के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, ना उनके करीब जाओ, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो पाक ना हो जाए। या करीब जाने का मतलब ये नहीं है उनका खाना भी खाओ, बैठो, खाना खाओ, सारा कुछ है, लेकिन वो एक खसूसी तल्लुक से बस मना है। बाकी ये नहीं कि वो छूत हो जाती है और हर चीज पढ़ भी सकती हैं, पाक है, जुबान पाक होती है, जिक्र ज़िकार कर सकती हैं। तो ये बाकी आगे इंशाल्लाह पता चलेगा आगे जब मैं पढ़ूंगी। फाइजा ततहरना, बस जब वो पाक हो जाए, फातूहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहाँ जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों को और पाकीज़ा रहने वालों को, तहारत वालों को पसंद करता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेती हैं। फातु हर सकूं अन्नशे, तुम बस आओ अपनी खेती में से जहाँ से चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अगले यानी आगे अपने हाथों भलाई भेजो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालम, और खूब जान लो, अन्नकुम मुलाक़ूहु, तुम उससे मुलाकात करने वाले। यहाँ खेती से मुराद यही है कि वो बहुत, यानी कि इस रिश्ते को इस तरह डिफाइन किया गया है कि उनके साथ मोहब्बत वाला, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको दीन की तालीम भी दो, उनको नुकसानों से भी बचाओ। यहाँ हमने एक ही कॉन्सेप्ट ले लिया है खेती का और उसका, कि शायद बस औरत और मर्द का जो है एक रिश्ता ही डेवलप करने के लिए रिश्ता है। ये रिश्ता तो बहुत दूर रह जाता है। उससे पहले जो हमें कुरान जो हुक्म देता है कि वो लिबास है तुम्हारा, और यानी कि ये वसी मफहूम के मायनों में, ठीक है ना। और अल्लाह से डरो। आप देखेंगे हर हुक्म में अल्लाह से डरने का हुक्म है। वालमू, और खूब जान लो, अन्नकुम मुलाक़ूहु, तुम मुझसे मुलाकात करने वाले। यानी अगर हमें ये हो कि हमारा अल्लाह से हर सूरत सामना होना है, तो फिर हम, वो तो हमारी नीयतों को भी जानता है, तो हम इंशाल्लाह फिर हमारे इखलास हो जाएगा काम। वबश्शिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और मत बनाओ अपनी कसमों को आड़, अन तबर्रु, कि तुम नेकी नहीं करोगे, व तत्तकू व तुस्लिहु बैनन नास, कि तुम तकवा नहीं करोगे और ना तुम लोगों में इस्लाह कराओगे। बाज़ लोग कहते हैं नेकी का जमाना नहीं है, मैं फलां ने एक दफा नेकी की थी, अब नहीं मैंने करनी, ये वो बात भी है। या कसम खा लेते हैं कि फलां से की है, फरमाया कि अल्लाह को बीच में लाकर तुम ये जो ऐसे कसद कर लेते हो ना, ये मुनासिब नहीं है। कि मैंने फलां की सुलह करवाई थी, मुझे दोनों तरफ से बहुत जूते पड़े हैं, तो अब मैंने सुलह नहीं करवानी। ये हमारे रोजमर्रा के मुहावरे हैं। तो इसका मतलब है हमने वाह वाह के लिए की थी ना फिर वो। अगर हम अल्लाह के लिए करेंगे ना, तो कोई मैटर नहीं है, ना इज्जत का, ना क्योंकि अल्लाह के लिए इज्जत है। तो फिर जमाने की परवाह ना करो, अपना काम ना छोड़ो। जो तुम, हम क्या करते हैं, झट से नेकी छोड़ देते हैं अगर कोई हमसे बुरा बुरा करता है, वो नहीं करना चाहिए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, अल्लाह नहीं पकड़ता तुम्हें तुम्हारी लघु ईमान कसमों पर, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबतुम कुलूबुकुम, लेकिन उन पर पकड़ेगा जो तुमने पक्की कसमें खाते हो ना, जो तुम अपने दिलों को मजबूत, यानी कि दिल को यानी कि गवाह बनाकर। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला हिलम वाला है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबातिन अशहुरिन, वो लोग जो कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के मुतल्लक, तरब्बुसु अरबातिन अशहुर, 4 महीने तक उनके लिए मोहलत है। फाइन फाऊ, बस अगर वो लौट आए, फाइनल्लाह गफूरुर रहीम, बस अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। वाइन अज़म तलाक का, और अगर तुम तलाक का इरादा कर लो, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वल मुतल्लकातु, और मुतलका औरतें, या तरबस्ना बिअनफुसिहिन्ना, अपने आप को रोके रखे, सलासा तकरून
3 तोहर तक। वला यहिल्लु नहीं हलाल लहुन्ना उनके लिए कि अन युक्तुमना कि वो छुपाएं मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना जो अल्लाह ने तख्लीक किया उनके रहमों में, इन कुन्ना युमिन्ना अगर वो ईमान वाली है बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिर पर, व बउलातहुन्ना और उनके शौहर अहक वो ज्यादा हक यानी कि उनका ज्यादा हक है बिरद्दिहिन्ना फिल जालिका इसमें पहल करने में या उनको लौटाने में, यानी सुलह के अंदर समझ लें। इन अरादू इस्लाह अगर वो इस्लाह करना चाहें। वलहुन्ना मिस्लुल्लाज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ और उनके लिए भी ऐसा ही है जो उन पर है, यानी उसी जैसा ही हक है वहां बराबर दोनों पर, अलैहिन्ना बिल मारूफ अच्छे तरीके से। वलिर रिजाली और मर्दों के लिए अलैहिन्ना उनके ऊपर दर्जा है। वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। अत्तलाकु मर्रताइन तलाक 2 मरतबा है। फइमसाकुन बिमारूफ या तो बस रोक लो अच्छे तरीके से, और तसरीहुम बेहसान या अच्छे तरीके से छोड़ दो, बीच की कंडीशन नहीं है। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुजू और नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम लो मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैया अगर तुम कुछ उनको दे चुके हो, इल्ला मगर ये कि अन यखाफा कि तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह युकीमा हदूदल्लाह को अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। फाइन खिफ्तुम और अगर तुम्हें ऐसा कोई खौफ हो कि अल्लाह युकीमा हदूदल्लाह के अल्लाह की हदूद कायम नहीं रख सकेंगे, फला जुनाहा अलैहि मा फी मफ्तदत बिही तो कोई हर्ज नहीं है उन दोनों पर जो फी मफ्तदत बिही जो फिदिया दे के जान छुड़े। हाँ जी, ये फिर जाहिर है कि अगर औरत छुड़ाएगी तो फिर वो अपना उसको छोड़ना पड़ता है, और जो माल वगैरह दिया है वो भी उसको देना पड़ता है खुला के लिए। और मर्द को ये हदूद हर चीज में हदूद ही है ना, यानी अगर तुमने उनको तलाक दे दी है तो उनसे जो तुम कुछ दे चुके हो, तोहफा तहरीर दे चुके हो या ये हक मेहर वगैरह, तो उनसे ना लो, ठीक है ना, ये वो है। तो इसी तरह औरतें अगर खुला लेना चाहती हैं तो वो अगर वो उन्होंने हतमी है उन्हें तो फिर वो मतलब माल जो है वो जो अगर वो उन्होंने कुछ खर्च किया है या अपना हक महर छोड़ना है तो वो फिर छोड़ेंगी, ठीक है ना, जान तो छुड़ानी है। तिल का हदूद अल्लाह ये अल्लाह की हदें, ये पूरा एक चैप्टर है लेकिन अब टाइम नहीं है। फलाता आता दूहा बस मत हद से तजावुज करें, ये रमजान कुरान में पूरी रिकॉर्डिंग इसकी है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह और जो कोई हद से तजावुज करे अल्लाह की हदों को फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून यही लोग जालिम। फाइन तल्लक़हा बस अगर तुम तलाक दे दो उनको, फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा जब तक कि वो दूसरे मर्द से शादी ना करे। अब यहाँ हमने हलाला का तरीका जो है कि वो मर्जी का कोई यानी कि मर्जी से या कोई अल्लाह माफ करे दीवाने के साथ निकाह कर लेती है या कोई इस तरह कर लेती है, फिर वहां से जबरदस्ती तलाक लेके फिर पहले खामद, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत गुनाह है। लहू में बादी हत्ता यहाँ तक के तन की जाजन गैरा जब तक कि वो दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। फाइन तल्ला कहा पस अगर वो तलाक दे दे फला जुनाहा अलैहिमा इन दोनों पर कोई हर्ज नहीं, अन यतराजा कि अगर वो आपस में रजू कर ले यानी दोबारा फिर वो निकाह होगा। इन जन्ना अगर उनको ये हो के यकीन हो कि अन युकीम हदूदल्लाह के वो अल्लाह की हदों को कायम कर सकते हैं। वतिल का हदूदल्लाह और ये अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनु हाली कौमी यालमून ये वाज़ेह फरमाता है अल्लाह लेकिन उस कौम के लिए जो जानते हैं। अब कुरान पढ़ा हुआ है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, खोलेगा कोई जानेगा तो जानेगा इसको, तो फरमाया ये सारे अहकामात उनके लिए कुछ जानना चाहते हैं। फ़ाइज़ा तलक़्तुम उन्निसा पर जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना बस वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत को, फ़अमसिकुहुन्ना बस रोक लो उनको बिमारूफ अच्छे तरीके से, और सर्रिहुन्ना बिमारूफ या अच्छे तरीके से छोड़ दो। ये दोनों काम हमारे कम अज कम पाकिस्तान में नहीं होते। छोड़ना है तो सारे जहान के ऐब उसके अंदर डाल देने हैं, तो ये सख्त मना किया गया है कि अच्छे भलाई के साथ नहीं बनी आपकी, अच्छे तरीके से पैदा हो जाओ। और अगर रुकना है तो रोक लो। एक तलाक अभी दी है ना तो तुम उस टाइम में रोक सकते हो, 2 भी दे दी है फिर भी रोक सकते हो, तीसरी दे दी है ना फिर वो हराम होगी तुम पर। तो अगर दोबारा उसको रख लिया है तो सारी उम्र ये ताना ना दो, अच्छा तलाक देने लगा था, तलाक अच्छा होता मैं दे देता, ताने ना देना बात की जिंदगी के, ये है। तो अगर छोड़ा है तो
اس لیے نہ سارے جہان کے ایپ اس میں ڈال دو کہ اب یہ کسی جوگی نہ رہے، ہاں کہیں اور نہ نکاح کر سکے، کرے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان۔ اور قرآن ہمارا دیکھیں کتنا خوبصورت، بے معروف، اچھے طریقے بھلائی کے ساتھ، ولا تم سے پہننا درارن، اور مت روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے، لتا دو تاکہ تم پر زیادتی کرو، وہ میں یفعل ذالک فقد ظلم نفسہ، بس جس نے ایسا کیا اس نے اپنے جان پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ سمجھو، واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے، اور ان پر جو نازل کیا تمہارے اوپر کتاب میں سے، اور حکمت جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرو، خوب جان لو اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب تم طلاق دو عورتوں کو اور پہنچ جائیں وہ اپنی میعاد تک، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت ان کو روکو کہ انجن کی ازواجہن کہ وہ دوسرے مردوں سے شادی کریں، وَإِذَا تَرَاوْا تو جب وہ باہمی راضی ہو، بینہم بالمعروف اچھے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ پر اور جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے، واطہر، تمہارے لیے بہتر بھی ہے، اور اطہر اور پاکیزہ تر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں بچوں کو پورے 2 سال، لمن ارادہ ان یتم الرضاع، لیکن یہ حکم فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلائیں لیکن جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے، وعلی المولود لہ، اور جو بچے کی جو ماں ہے اس کے بچے کا باپ ہے اس کے اوپر ہے رزقہن، ان کا کھانا پینا، اچھی خوراک، وکسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے سے کپڑا وغیرہ کی، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو اس کی وسعت کے حساب، لا تدار والدات بولدها ولا مولود له بولده، نہ نقصان دیا جائے بچے کو ماں کو بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نہ نقصان دیا جائے والدات بھی اس کے بچے کے باعث، اور نہ باپ کو، ٹھیک ہے، اس کے باعث، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملہ کرو، بچے کو آڑ بنا کر جو ہے اس کی رضاعت کے معاملے کو آڑ بنا کر آپس میں زیادتی نہ کرو، وللوارث مثل ذلك، اور اسی طرح وارث کے لیے بھی یہی حکم ہے جس نے ڈسیزن لینا ہے کہ کیا کرنا ہے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ چاہیں کہ دودھ چھڑانا چاہیں، انترادن اپنی مرضی سے، منہما وہ دونوں، وتشاورن، اور وتشاورن فلا جناح علیہما، مشورے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا اولادکم، اگر وہ چاہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم کیا لکھا ہے یہاں، ادا کر دو جو تم ان کو دے چکے ہو اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے، خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے بعد کوئی حرج نہیں جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ خوب جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں کوئی حرج تم پر جو تم پیغام بھیجو، من خطبۃ النساء او اقننتم فی انفسکم، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے کہ ایسی عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد، ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے میں، اور اس طرح اگر کوئی ان کو اپنی شادی کا پیغام دینا چاہے تو یہ ابھی یعنی عدت کے دوران جائز نہیں ہے، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے پیغام، یا تم اپنے نفسوں میں اس بات کو جو چھپاتے ہو، عالم اللہ وہ جانتا ہے اللہ، انکم ستذکرونہن ولکن لا تعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرتے رہو گے لیکن ان سے پختہ عہد نہ لو چھپ کر، یعنی کہ عدت کے دوران کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم بھلی بات کہہ سکتے ہو،
वला ताजिमु उक़्दतन निकाह, और मत मजबूत करो निकाह की डोर को, हत्ता तबलुगल किताबु अजला, जब तक कि वो अपनी मियाद को ना पहुंच जाए। यानी उनकी इद्दत के दौरान तुम उनको शादी का मैसेज नहीं दे सकते, मैसेज भी नहीं दे सकते। ओपनली नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम्हें ये खौफ है कि इसका कहीं और हो जाएगा तो किसी के जरिए बात को पहुंचा सकते हो। ये ओपनली अल्लाह की हुर्मत को पमाल करने वाली बात। वालम, और खूब जान लो, आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारा कुछ मर्जियों से हो रहे हैं, ना इद्दतें पूरी हो रही हैं, ना बात के तकाजे पूरे हैं। अल्लाह हम सब पर मिन है सब कौम हमें रहम फरमाए, माफ फरमा दे। हल्के हो गए हैं काम कुरान के, खुद से हम तयन कर लेते हैं कि ये एज है तो मैं जा सकती हूँ, जो काम जाने के बगैर हो सकते हैं उनको, और रात नहीं रह सकती, बहुत सारे काम है। अब सूरत बकरा तो इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि इसके लिए तो पता नहीं साल हा साल चाहिए। तो अल्लाह ताला ये जो इतनी स्पीड से पढ़ रहे हैं हमें माफ कर दे। एक बस कोशिश ही है हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला दिलों के इखलास जानता है। तो वालमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, अल्लाह खूब जानता है कि जो तुम्हारे नफ्सों में है। फहज़रूहु वअलमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला इल्म वाला है। ला जुनाहा अलैकुम इन तलक्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना और तफरिदू लहुन्ना फरीज़ा, नहीं है कोई हर्ज अगर कि तुम तलाक दे तुम औरतों को जिनको तुमने अभी छुआ भी नहीं है, और उनके लिए ना ही महर मुकर्रर किया है। वमत्तिउहुन्ना, तो उनको कुछ फायदा दे दो। अगर तलाक हो गई है ना इससे पहले ही, तो क्या है, अलल मूसी कदरहु व अलल मुक्तिरी कदरहु, सखी पर उसके हिसाब से है, और जो तंग दस्त है वो अपने हिसाब से। वैसे एक जोड़ा कपड़े का देकर खत्म हो जाती है बात। मतान बिल मारूफ, ये फायदा देना है भलाई के साथ। हक्कन अलल मुस्लिम मोहसिनीन, एहसान वालों पर। वाइन तलक तुम, अगर तुम तलाक दोगे ना औरतों को, मिन कबली अन तमस्सूहुन्ना, इससे पहले कि उनको छुआ हो, ठीक है, लेकिन तुम महर मुकर्रर कर चुके हो। वक़द फरज़तुम लहुन्ना फरीज़तन, महर मुकर्रर कर दिया। फनिस्फु मा फरज़तुम, तो निसफ देना पड़ेगा तुम्हें उनको। इल्ला याफूना, मगर ये कि वो माफ कर दे। और याफू कहीं अल्लाह की, ऐसा भी निकाह होता है जिसमें हक महर अभी डिसाइड ही नहीं होता, फिर बाद में डिसाइड करें। यही है ना कि अभी तुमने हक महर नहीं बांधा उनका। लेकिन हक महर तो हाँ, साथ ही देकर निकाह करा रहे तो जब हक महर साथ में देते। साथ कर लेते हैं ना, ये अफजल तो यही है, लेकिन बात का नहीं भी होता। अच्छा। हाँ, ये जो कुरान पाक में इसकी कंडीशन, ये फिका का मसला है, मसाइल है, इंशाल्लाह मैं बात को आपको बताऊंगी इसमें। तो जो कुरान में आ गया ना, ये देखें कि अभी तुमने हाथ भी नहीं लगाया और निकाह भी नहीं, मतलब निकाह हुआ लेकिन हाथ नहीं लगाया। हाँ, निकाह हो गया है, ना महर मुकर्रर किया है और ना तुमने हाथ लगाया, तो कुछ भी नहीं है, तो तुम जोड़ा ये कपड़ों का दे दो। और अगर मुकर्रर हो गया है, महर नहीं छुआ, तो आधा महर दो। और दूसरी सूरत में फिर तीसरी सूरत ये है, हाँ जी, तो फरमाया कि निसफ देना है। माफर इल्ला अन याफूना, और याफू अल्लज़ी बियदिही उक़्दतुन निकाह, या या वो माफ कर दे, या माफ कर दे वो जिसके हाथ में निकाह की डोर है। वन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के करीब है। वला तनसउल फज़ला बैनकुम, और आपस में बाहमी फजल को न भूलो। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो देखता है। हाफिज़ु अलस्सलाति, की देखिए हुक्म के साथ हुक्म जुड़ा हुआ है, हिफाजत करो नमाजों की। वस्सलातिल वुस्ता, खास तौर पर दरमियानी नमाज जिसको कहते हैं असर की। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह के लिए आजिज़ी से खड़े हो जाओ। फ़इन खिफ्तुम, बस अगर तुम्हें खौफ हो, यानी ये नमाज खौफ का तरीका है। फरिजालन और रुकबानन, चाहे प्यादा हो या सवारी पर हो। फ़ायदा अमिन तुम, पर जब तुम अमन में आ जाओ। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो जिक्र करो अल्लाह का जैसे उसने तुम्हें सिखाया है। मा लम तकुनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीना, और वो लोग युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन, जो फौत हो जाएं और छोड़ जाएं बीवियां। वसीयतन लिअज़वाजिहिम, तो वो वसीयत करके जाएं एक साल के लिए। मताअन इलल खौली, कि वो एक साल के लिए यानी कि उनको रखा जाए, गैर इखराज, ना निकाला जाए। फाइन खरज ना, बस अगर वो निकल जाए इसके बाद, फला जुनाहा अलैकुम फी मा क़ालना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, जो अपने नफ्सों के बारे में जो फैसला करें अच्छे तरीके से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लकाती मताउन बिल मारूफ, और मुतल्लका औरतों के लिए मताउन बिल मारूफ, फायदा दो यानी कि अच्छे तरीके से। हक्कन अल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के ऊपर उनका हक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह खोल कर बयान करता है तुम्हारे तुम पर आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल करो।
अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या नहीं देखा उन लोगों को जो निकले अपने घरों से, वहुम उलूफुन हज़रल मौत, वो हजारों में थे मौत के डर से। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, और अल्लाह ने उनको कहा कि मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, फिर उनको जिंदा किया। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अल्लाह बहुत फजल करने वाला है लोगों पर। वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। वकातिलु फी सबिलिल्लाह, और अल्लाह के लिए लड़ो। वालम, और खूब जान लो कि अल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, वो दुगना चौगना करके दे उसके लिए बढ़ाकर। यानी अल्लाह को कर्ज़ हसने का मतलब अल्लाह के बताए हुए मसाइल पर खर्च करना है। वल्लाहु यकबिज़ु व यबसितु, अल्लाह ही तंगी देता है, अल्लाह ही कुशादा करता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल, क्या नहीं देखा बनी इसराइल के यानी कि जो सरदार जो थे, मिन बाद इमा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इस कौलु लिनबिय्यिन, जब कहा उनको उनके नबी ने, इस कौलु जब कहा लिनबिय्यिन, अपने नबी से, अल्लाहु वब असलना मालिकन, के हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करो। नुकातिल फी सबिलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह के लिए जंग करें। कौला, फरमाया, हल असई तुम, कि हो सकता है इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर जहाद फर्ज हो जाए, अल्लाह तो कातिलो, और तुम ना करो जहाद को। कौलू, कहने लगे, फमाला ना, क्या है हमें कि अल्लाह तो कातिल फी सबिलिल्लाह, हम अल्लाह की राह में ला नुकातिल, कि ना हम जंग करें। वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, के तहकीक हम अपने घरों और अपने बाल बच्चों से निकाल दिए गए। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, और जब उन पर फर्ज कर दिया गया किताल, तवल्लौ, वो मुंह फेर गए। इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर थोड़े ही थे जो नहीं फिरे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनको उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, कद बाअसा लकुम तालूत मालिका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुकर्रर किया है बादशाह। क़ालू, कहने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, वो क्यों कर हमारे ऊपर बादशाह मुकर्रर हो। व नहनु अहक्कु बिल मुल्की, और हम ज्यादा हकदार हैं इसके। वलम युअता सात मिनल माल, नहीं दिया गया उसको माल के अंदर वसअत। कौला, कहा, इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह ने उसको तुम पर चुन लिया है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, और जिस्म ताकत में और इल्म में उसको इजाफा किया है, फरागी दी है। वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत अता फरमाता है। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह बहुत वसअतों वाला है और अलीम, जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनको उनके नबी ने, इन्ना आयाता मुल्क ही, उसकी बादशाही की निशानी ये होगी कि आयात याकुमुत ताबूत हो, कि आएगा तुम्हारे पास संदूक, फी ही सकीना, जिसके अंदर समाने तस्कीन होगा, सुकूनत का समान होगा। व बकियत मिम्मा तरका आले मूसा, और बाकी जो आले मूसा व आले हारून उन्होंने छोड़ा। तहमिलुहुल मलाइका, और उसको उठाए होंगे फरिश्ते। इन्ना फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानियां हैं तुम्हारे वास्ते, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फलम्मा फसला तालूत बिल जनूदी, और जब रवाना हुए तालूत लश्कर के साथ, काला, फरमाया। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो मुश्किल ही लगेगा। तालूत और जालूत, ये दो हैं। इसमें एक को अल्लाह ताला ने यानी कि बादशाह बनाया, और एक को जो है ना ये जिहाद के लिए बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने जिनको तालूत को अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया उनके लिए बादशाह। ठीक है ना। तो ये जो थे, ये इतने वर्थ यानी पैसे वाले नहीं थे और इस तरह, लेकिन लोग हमेशा से यही कुछ देखते हैं। लेकिन जब उन पर एतराज किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का ये फैसला है, अल्लाह जिसको चाहे वो इज्जत देता है, बादशाही देता है। तो उस वक्त के जो नबी थे ना, उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम लोग मुतमिन नहीं हो रहे, तो तुम्हें उनके लिए एक इसको कौन सा देगा, सुन के बता दूंगा। अच्छा जी, बेशक इसमें निशानियां हैं तुम्हारे वास्ते, अगर तुम ईमान वाले हो। तो फलम्मा फसला तालूत बिल जनूद, और जब रवाना हुए तालूत लश्कर के साथ, कौला, कहा, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के साथ आजमाएगा।
फमन शारिबा मिन्हु, बस जो कोई पी ले उसमें से, फलैसा मिन्नी, बस वो नहीं है हमसे, वलम वमन, और जो लम यत अमहु, जो ना उससे पिए, फइन्नहु मिन्नी, बस वो मुझसे होगा, इल्ला मने उतारा गुरफा तुम लिया दे, मगर ये कि जिसने चुल्लू भर पानी लिया, फशारिबु मिन्हु, बस वो, फशारिबु मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हु, बस पिया उसमें से मगर थोड़े ही थे जिन्होंने नहीं पिया, फलम्मा जावज़हु, और जब वो उसको पार कर लिया हुआ उसको, वल्लज़ीना आमनु माहु, और उन लोगों ने जो ईमान वाले थे उनके साथ, कौलू कहने लगे, ला ताकत लनल यौमा बिजालूता व जुनूदिही, आज हमारे अंदर ताकत नहीं है जालूत और उसके लश्करों के साथ लड़ने की, कौल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, और कहा उन लोगों ने जो गुमान रखते थे, यकीन रखते थे कि अन्नहुम मुलाकुल्लाह, के हम अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, तो वो कहने लगे, कम मिन फियातिन कलीलातन, कितनी ही थोड़ी जमातें, गलबत फियातन, गालिब आ गई जमात, कसीरतन बड़ी के, बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बाराजू लिजालूता व जुनूदिही, और जब बाराजू आमने सामने हुए जालूत और उसके लश्करियों के, कौलू, तो उन्होंने ये दुआ की, रब्बाना अफ्रीग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम रख और हमें काफिरों की कौम पर फतह दे। ये बहुत प्यारी दुआ है। कोई भी मामला हो, कोई जैसे कि मतलब पता चल रहा है कि अपनी कमजोरी नजर आ रही है, दूसरे की ताकत नजर आ रही है, लेकिन वो हक वाला मामला हो तो उसमें फिर ये दुआ पढ़ के करनी चाहिए कि अल्लाह अफरीग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, जैसे गज़वा बदर में भी था। समझ लें ये जो जंग हुई थी ना, ये बनी इसराइल की गज़वा बदर थी। थोड़े लोग थे लेकिन वो दरमियान में उनका इम्तहान होता रहा। बड़ी इसराइल ने लड़ी थी काफिरों के थी। हाँ जी, और फिर उसमें उनको निशानी ये थी कि पानी नहीं पीना, लेकिन मोस्टली लोगों ने, सख्त गर्मी थी, उन्होंने पानी पी लिया। पानी पीते ही वो ऐसे थके, उनके पेट फूल गए, रंग काले हो गए, वो उनमें ताकत खत्म हो गई। जिन्होंने सिर्फ चुल्लू भर लिया और फिर वो पार लग गए, तो वो फिर उनमें दो जमातें बन गई। फिर एक कहने लगी कि सामने दुश्मन तो ज्यादा है और ताकतवर है, तो हम कैसे लड़ेंगे। तो जो दो जमातें बनी उनमें से एक जमात ने उस जमात को हिम्मत दिलाई कि जमात में यानी कि तादाद मैटर नहीं करती, कि जब हम अल्लाह के लिए निकले हैं, अगर मर जाएंगे तो शहीद हैं, तो अगर हम खालिस हो जाएंगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह यकीनन, नहीं, नबी ने उनके यानी ऑर्डर था उनका कि यानी एक आजमाइश थी, उनकी जांच थी। फिर दो जब ग्रोह हो गए, एक ग्रोह ने दूसरे की हिम्मत बना दी, ताकि थोड़ी जमातें अक्सर मोस्टली आ जाती हैं, गालिब आ जाती, तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी मदद की। और आपको पता है इतना ताकतवर दुश्मन कैसे मरा? वो हजरत दाऊद उस वक्त लश्कर के अंदर थे, उस वक्त नबूवत नहीं अभी उनको मिलेगी, 14-15 साल के थे सिर्फ। तो उन्होंने वो गुलेल नहीं होती, वो माहिर थे इस चीज के, तो उन्होंने पत्थर रख के मारे थे सिर्फ। लेकिन चूंकि हाथ जाहरन बंदे का होता है, ताकत अल्लाह की होती है, और वो इतना बड़ा दुश्मन था, इतना लंबा चौड़ा था कि वो पत्थर लगने से, उसके पत्थर यहाँ से आर पार हुआ, उसकी खोपड़ी से आर पार होकर पीछे 30 बंदे और मर गए उस वक्त। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी, मोई से दिखाता है ना फिर अल्लाह ताला। तो ये है यहाँ। तो फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, पास उन्होंने शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से। वक़तल दाऊद जालूता, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को। वआताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने उनको बादशाही भी दे दी, किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। वल हिकमा, और हिकमत भी। वअल्लमहु मिम्मा यशा, जो चाहा सिखाया। वलौला तफ़उल्लाहिन्नासा, और अगर अल्लाह ना दूर करता लोगों को, बाज़हुम बिबाज़, बाज़ को बाज़ से, यानी एक दूसरे की ताकत को एक दूसरे से रफा दफा ना करे, वो बैलेंस करता है ना, तो लफसदतिल अर्द, जमीन पर फसाद हो जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह बहुत फजल फरमाने वाला है आलमीन के ऊपर। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तिलावत करते हैं आपके ऊपर है महबूब, हक के साथ। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूलों में से हैं।
ये इस आयत का क्या थोड़ा सा फैक्टर लिखा हुआ है कि अल्लाह और अगर अल्लाह लोगों में मतलब गुनाह करे एक दूसरे को अल्लाह ना करे इसमें क्या दफा के मानी किसी चीज को बजौर हटा देना या मिटा देना, यानी अगर अल्लाह ताला मोमिन और मुस्लिमीन के जरिए फितनागर और फसादी लोगों को जमीन से दूर ना करता तो ला फसादतिल अर्दा फसादन, यानी जमीन में सारी में फसाद हो जाता, बिगड़ जाती, और उसमें फसाद जब पैदा होता तो जमीन पर आबादियां ना रहती, ना शरीफ लोग चैन से गुजारा कर सकते। वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़्ल अलल आलमीन, चूंकि इंसान के बिगड़ने से पूरा आलम ही फसाद में मुब्तला हो जाता है और इंसान की इस्लाह हो तो सारे जहान की इस्लाह है, इसलिए जहाँ आलमीन फरमाया, यानी अल्लाह ने तमाम जहानों पर बड़ा फजल करम फरमाने वाला है, इसलिए उसने मुजाहिदीन पैदा फरमा कर, तुम में से मुजाहिदीन को पैदा करके उनको हिम्मत ताकत देकर, ठीक है ना, जो लड़ते हैं जो लड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो अगर अल्लाह ताला ने मतलब डिफरेंशिएट किया कि कुछ लोग मुजाहिद बना दिए जो तुम लोगों के लिए भी लड़ते हैं वो तुम जाके जाहिर है, और फितने को खत्म अब कर देखें देते हैं ना, आर्मी जंग लड़ती है तो हम सुकून से सोते हैं, हम खुद तो नहीं ना इंडिया से लड़ सकते जाके, ठीक है ना। तो ये भी अल्लाह का करम है। तो यहाँ ये सब चीजें ये है कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरे प्रोसेस को क़यामत तक लेकर चलना है। अच्छे लोग भी पैदा होते रहेंगे, बुरे भी होते रहेंगे, अच्छे जो है वो उनको अल्लाह हिम्मत और ताकत देता रहेगा। और वैसे भी हम जो खाते पीते हैं, ये अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, इसके अंदर अल्लाह के वली हैं, कुतब हैं और अब्दाल लोग हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ है। तो वो जो रातों दिन दुआएं करते हैं और उनकी वजह से ये सारे इतने जुल्म के बावजूद दुनिया कायम है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन सालहीन और वली जो है ये लेकर आगे चलेंगे सारा प्रोसेस, ठीक है। तो फरमाया व इन्ना काला मिनल मुरसलीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है वो मुरसलीन में से हैं। पढ़ दूं मैं ये थोड़ी सी, और कुछ बुरा धोखा कर चले देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज दूसरा पारा मुकम्मल कर लिया। तो कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद गालिब है कि कल रोजा है, तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोग हर सूरत जो है वो 2:30 बजे ऑनलाइन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगि लिजलाली वजहिका अज़ीम सुल्तानिका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदिन व अख़वाहिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वल जूद वल करम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला असहाबिका या हबीबल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम इरहम हालना व ला तंजुर इला सुई अमालिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना फिल जन्नति मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा अज़हिब अल-बाअस रब्बी नासिर वashfi अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाअक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। दूर और नज़दीक के सुनने वाले अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह रमज़ान के बाबरकत महीने में हम दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा कर। अल्लाह हम सबको नफ्सों के शर्म से बचा कर अल्लाह तो अपनी ख़ास हिदायत अता फरमा। अल्लाह हमारे वक़्त में बरकतें डाल, उम्र में बरकतें डाल। अल्लाह नेकी के जो सोचते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ अता फरमा। जो भी पड़ा है इसमें कमी कोताही गलती देर सबक पेश की यकीनन हो गई, माफ़ फरमा।
اللہ اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ اس دین پر ہمیں جما دے، ہمارے دل اسلام کے ساتھ مطمئن کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی حاضری، اپنی ملاقات کا یقین عطا فرما۔ اللہ ہمارے لیے دین دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ ان کے صدقے اور وسیلے سے تمام ان کی آل پاک کو، ازواج مطہرات کو، والدین کریمین کو، صحابہ کرام کو، شہداء کو، صالحین کو، جمیع المومنین والمومنات، والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات، اور وہ بھی جن کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں، کل امت محمدی آپ اس کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا کھویا ہوا مقام اپنے اسلاف کے راستے پر چلا۔ اللہ سلف صالحین جس طرح نیکیاں کرتے تھے ہمارے اندر بھی طاقت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں روزوں میں خالص اپنے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کی پریشانیاں دور، بیماروں کو شفائیں دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اللہ ہمارے پیاروں کو بخش دے، جو بھی پڑھا ہے وہ اس کے لیے توشہ بن جائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جیسے بھی جہاں بیمار ہیں سب کو شفائیں دے۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد، اللہ فتنوں سے بچا لے، اللہ فتنوں سے بچا، ہمیں ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچا لے، وہ آنکھ سے حفاظت فرما جس کو نہ بات ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پر ساتھ عطا فرما۔ اے میرے باپ روز حشر ہم سے، اے اللہ روز حشر ہمیں نشر نہ کر، پردے رکھ لینا، معاف کر دینا، جنتوں میں داخل کر، جہنم سے بچا دینا۔ اللہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ قاسم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل 2:30 بجے۔ باقی عمر گروپ میں ایڈ تو ہے، کیونکہ پہلے والے اب انہوں نے لینے